Good evening, class. Today we will start about we'll start new topic in functions only, and it is graphical transformations. Advik, just confirm, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right, so let's start this topic. Okay, so transformation means change. Okay, transformation means change. Now, what is the article all about? If we know the graph of y equals fx, okay, then to draw graph of y equals fx plus a, where a is positive, what we do? Shift graph of y equals fx vertically upwards by a units. And to draw the same graph where a is negative, in this particular case we shift graph of y equals fx vertically downwards by a units. So what is the meaning that we know the graph of y equals fx? That means the graphs that you have already studied, and based on that, if you are supposed to draw the graph of y equals fx plus a, then if a is positive, you have to shift the graph of y equals fx vertically upwards. That means no horizontal change, only vertically, okay, by a units. And if a is negative, then you have to shift the graph of y equal to fx by a units vertically downwards. What is the meaning of this? Where you will find such kind of situation if you have to draw these graphs? Alright, suppose we have to draw these graphs. Just write in your copy. Obviously, you need not to post it in the comment section. Just draw whatever you can based on this technique, and then when I will draw, you just check whether your graph was correct or not. Just draw these two graphs in your copy.
I hope you might have drawn these two. Now just see if they are right or wrong. So what we will do, we know the graph of, you can easily identify the function whose graph you already know. That is y equals mod x, right? Draw that graph. Now you know that the graph is V-shaped graph and that turning point is at origin, correct? This is y equals mod x. Now suppose you have to draw the graph of y equals mod x plus 1. So what you will do? You will shift this graph vertically by 1 unit. That is because of this technique or the graphical transformation. Okay. So you will shift this whole graph by 1 unit vertically. So that means this will be the required graph. See, there will be no change in the shape, right? There will be just, you can see the change in the height. Okay. Imagine the whole graph being lifted up by 1 unit. Okay. So that means if this point is 0, 0, then what about this point? This will be 0, 1, right? This turning point will be 0, 1. I am writing here. Fine. 0, 1. Now similarly, if you have to draw the graph of y equals mod x minus 1, so again you will come back to y equals mod x, right? And you will shift this graph of y equals mod x vertically downwards again by 1 units. Obviously I have not written the numbers here, right? So you know that there should be proper distances. But if I write 0, minus 1, it is understood that this point corresponds to 0, minus 1, right? So this graph is of y equals mod x minus 1. Like that, you can extend this to any function, not just mod x, any function. For example, now that you can do in terms of exercise. Suppose you have the graph of y equals sin x. Already you know the graph of y equals sin x. And I ask you to draw the graph of y equals sin x plus 3. Then what you will do? You will draw the graph of y equals sin x and you will lift it vertically upwards by 3 units. Correct? Likewise, you will find these type of transformations when you will be solving the questions. Okay. So this is transformation 1 and 2. If anyone having any doubt, please ask. Okay, then let's take the next transformation. So one thing is there that we already know the graph of y equals fx. You can say standard functions or all those things that I have taught you. Okay, wherever graphs I have taught you. If we know the graph of y equals fx, then to draw graph of third y equals fx plus a, where a is positive. Now you see this time a is with x, right? In the previous transformation it was outside fx, but now a is part of x only, it is x plus a. So that means in the function now in place of x we have to substitute x plus a, right? So y equals x f of x plus a, where a is positive, then what you have to do, shift graph of y equals fx horizontally. In the previous case it was vertically, now it is horizontally. Okay, that means parallel.
no up and down, left and right will be there. Horizontally, leftwards by A units. Okay, and if it is positive, then you have to shift graph of, so obviously every time A is some number, A is constant. Okay, so then it is positive or negative. Fine. Now there is no question, sir, what about A is 0? If A is 0, it will be y equals fx only. So what is the purpose? Okay, so shift graph of y equals fx horizontally rightwards, that means towards the right, again by A units. Okay, let us take example on this. Draw graphs of, once again you draw these first and then you check your answers. Draw these, y equals mod of x plus 1 and y equals mod of x minus 1. So this first one, y equals mod x plus 1, this will be compared to third one, because A, that is 1, is positive here, and the next one, that is mod of x minus 1, that will be compared with fourth one, correct? Because A is minus 1 here. Okay, so you know that this is y equals mod x. Fine, this is y equals mod x. Advik, can you tell me how you will draw this graph of y equals mod x plus 1? What changes will come in this graph? Anyone else? So could you please roll up a bit? What about y equals mod of x plus 1? What will happen? See, who's going under transformation? Y equals mod x. Once we draw y equals mod x, we can draw graph of y equals mod of x plus 1 and y equals mod of x minus 1 using above two transformations, third and fourth. So if you compare this one, okay, it looks like in place of x we have substituted x plus 1. Where? In y equals mod x. So as I told you, there will be no change in the shape, but it will be shifted. See, so this v is shifted to minus 1 comma 0. Why? Because it is given that in the transformation we have to
shift the graph of this by 1 unit. That is why. Now similarly, if we have to draw the graph of y equals mod of x minus 1, okay, this time this black graph y equals mod x, it will be shifted 1 unit to the right. It will be like this. As I am constantly repeating, there is no change in the shape, just left and right, these kind of changes are occurring. So on the basis of this, and what I am doing, just wait, I am drawing all the graphs on the same plane, right? So that you can understand the difference, so that you can differentiate between the three. That is why. Anyone having any doubt in this? This point will be 1, 0. So when we Yes. add something, so add a positive number, shouldn't it go to the right side? It looks like, it feels like it should go towards the right because we are adding 1, but I will tell you, we are adding 1 to x, not y. Yes, sir, but when you add 1 to x, shouldn't it go to the right side on the x-axis? Right. This should be mod of x plus 1. Then according to you, at this point x, y should be 0, but at this x, y will, so that is why it is wrong. Understood? Is Okay, it clear? sir. Is it clear? Is your doubt clear now? Sir, Yes, sir. your voice was cracking. Yeah, maybe network issues are there. Actually, I postponed the class because of that only. That time also there was a little bit problem. So screen is not visible. Yes. Screen is not visible. Actually, there may be a lag. That is the thing. It's visible. Just wait for some time. Is it visible, It's right? visible now. Yes, sir, it's visible now. Okay. And what about my voice? Is it audible? Can you hear me? Sir, It's now it's lagging. fine, but while you were explaining, it wasn't. Okay, okay. Just tell me if you have any doubt. I can explain again. Please ask if you have any other doubt. So what I was saying, listen, I can repeat once again. When we are drawing y equals mod of x plus 1, it looks like it should be towards right. Okay. Many of you must be thinking that graph should be like this. Okay. But this is wrong. Why? Because if you shift 1 unit to the right and you are saying that this point is on y axis, it will be wrong because at 1 value will be 2. But if you shift it to the left, okay, and you say that it is graph of y equals mod x plus 1, then it is correct, because then this point, when you shift it by 1 unit on the left hand side, this thing comes minus 1 comma 0, and when you put minus 1 here, the final result is 0. Okay, so what do you feel like? It is just the opposite. When it is plus, it will be on left side. When it is minus, it is on the right side. Okay. Yes, I Any other understood. doubt in this? All right. So this was the fourth transformation, right? Now let us take the fifth one. So if we know the graph of, see, this will be the common sentence in every transformation. Okay, if we know the graph of this, then to draw the graph of
Fifth one, y equals mod of fx. This is modulus. Now you will have to pay attention because the language contains some more sentences, not just the single sentence. Okay, it will be a combination of steps. So if you have to draw the graph of y equals mod x, we take the image of y equals fx below x-axis with mirror at x-axis only. Then delete the portion below x-axis, below x-axis. Now the final portion above x-axis is the graph of y equals mod of fx. So what they are saying, that if you have to draw graph of y equals mod of some function, okay, first of all you try to think about its standard function. Okay, that means a function whose graph is known to you, and then you have to put modulus on that. Okay, so what you do, you draw the graph of y equal fx first. Okay, and after drawing the graph, you take the image, you have to take the image of y equals fx which is below x-axis. So you don't have to take the image of the whole function, you have to take the image of the function which is below x-axis. And how you have to see the image, you have to consider that plane mirror or mirror is at x-axis only. Okay, once you take the image, so what will happen, whatever portion was below x-axis, and since the mirror is at x-axis, so it will come above x-axis, right? Image will be inverted because it is plane mirror. Once you do that, now you delete the portion, whatever portion is there, you delete the portion below x-axis. So all the portion after taking the image and deleting the portion below x-axis, whatever portion is coming above x-axis, that will be the graph of y equals mod of fx. And that is obviously true. Why? Because as we have discussed, that modulus is always a non-negative quantity. So when I write y is equal to mod of something, that what do means you mean y by is below x-axis? below x-axis. There will be graph below x-axis. When you will draw the graph, then you will come to know. Have you seen the graph of sin x? Yes, sir. Does it come below x-axis? Yes, sir. So that is what I'm saying. Okay, that will depend on the question. But it's a model function now. You are getting confused. I will ask you to draw the graph of modulus function, and you will have to first draw the graph of the function that you know, and from there, using this transformation, you will draw the graph of its mod. For example, if I ask you to draw this graph, draw the graph of, suppose this is what I want you to draw. But obviously I have not taught you about this before. I have taught you the graph of y equals fx. Okay, so try to understand from here to here. That is what you need to do. So you know the graph of y equals sin x, and now with the help of this transformation, you will be able to draw the graph of y equals mod of sin x. That is what I am saying. Understood? Yes, sir. Okay. So as I was saying, first of all, you draw the graph of the standard function that you know. Okay. Then you do this transformation, like the portion below x-axis, you take its image, and then you delete the portion which is below x-axis, and the final portion which is above x-axis, that will be the graph of y equals mod of fx. Let us apply this here.
It is easy. See, this is your. Now the question is, you know that y equals sin x, this can be extended endlessly, right? It never ends. This graph goes on, right, like this. So that means you have to stop somewhere. Suppose this is the graph, right? Now what they are saying, you have to draw the graph of y equals mod of sin x. So everywhere where the graph is below x-axis, you take its image, right? That is what I was saying. And where is the mirror? Mirror is at x-axis only. So these are all the techniques basically. Mathematicians have developed the techniques so that you can draw these graphs quickly. Okay. Gone are those days when you used to put value of x, then you will get y, then you will get some points, then you will join them. Okay. Till straight line it was fine. Sorry. Till straight line it was fine, but not now. Okay. We need faster techniques to draw the graphs. So that is what you are studying right now. So if we use that concept, okay, this will be, now you can see that what I am doing is I am taking the image of the portion which is below x-axis, right? You have to take the image only which is above below x-axis, okay, nothing else. Now if I ask you that what is the final graph, okay, what is the final graph, then the final graph will look something like this. Okay, final graph will look something like this. I hope this is clear. Because what we have done, first we have taken the image of the portion which is below x-axis, right, that you can see with the help of red color, and later on you have to delete the portion which is below x-axis. So what will remain, finally whatever will remain above x-axis, that will be the graph of your required function. Is this clear? Anyone having any doubt? Okay, then I want you to draw this graph. Let me see how many of you can draw this. Okay, I want you to draw this graph, right? Watch carefully. It is y equals modulus of mod x minus 1. Obviously, anyone can read what is written here, right? So you have to draw the graph. And if anybody wants to answer, okay, then you can answer it because the answer is an alphabet. Okay, answer is an alphabet. So let me see who can draw this. Anyone draw it? Just tell me what alphabet you are getting. Actually, the graph of this is an alphabet, right? Let me know. So V. Yeah, please repeat. So V. No, try again. So it will be a straight line.
How could it be straight line? I told you the graph, the shape is an alphabet. Just like he said V, I said no. Straight line cannot be the answer. Use transformations. Sorry? W? Yes, W is the answer, correct. And can you just tell me the points where it is cutting x-axis and y-axis? What are those points where it is cutting x-axis and where is the point where it is cutting y-axis? W is correct, shape is correct. That you can find from the equation only, right? Just try for a minute. See, in one question, you can use more than one transformation. पहले ये सोचो कि तुम्हें कौन सा ग्राफ बनाना आता है और उसकी हेल्प से, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से तुम और कौन कौन से ग्राफ बना सकते हो. डू नॉट ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ डायरेक्टली, ऐसे सीधे नहीं बन पाएगा. कौन सा ग्राफ हमें आता है, फिर हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर फाइनल ग्राफ तक पहुंच सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, it is possible that more than one transformation may be required in a single question. मतलब किसी एक सवाल में एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज हो सकती है. So it cuts the y-axis at 1. Yes, correct. और वो x को कहाँ पे कट कर रहा है? So 1 and -1. Yeah, correct. सही है. देखो कैसे बनेगा. सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको आता क्या है. तो आपको आता है y इक्वल्स मॉड x, करेक्ट. उसके बाद उससे आप पहुंचेंगे y इक्वल्स मॉड x -1 पे. ऐसे ग्राफ बनाते जाओगे, देन यू विल रीच द फाइनल ग्राफ. और उसके बाद आप बनाओगे इस पूरे मॉडुलस का ग्राफ जो आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी उससे, करेक्ट. सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज देयर. सबसे पहले आपने बनाया y इक्वल्स मॉड x का ग्राफ, करेक्ट. यू कैन मार्क दीज पॉइंट्स ताकि फिर बाद में ढूंढने में दिक्कत ना रहे. जैसे ये तो पता ही है सभी को 0 0 होता है, राइट. इससे तुम ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर आओगे सेकंड वाले पर, और ये तो अभी एग्जाम्पल भी था. सो यू कैन ड्रॉ दिस लाइक दिस, राइट. ये हो गया अपना 0, -1. अच्छा, इस सिचुएशन में कोई आके ये पूछे कि भाई जब हमने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, हमने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किया है, सो दीज 2 पॉइंट्स ये क्या होंगे, क्योंकि पहले तो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा था, अब कट कर रहा है. तो आप इन दोनों पॉइंट्स की एक खास बात देखो, ग्राफ किसका है, इसका ग्राफ है ना. और इन दोनों पॉइंट्स पे y 0 हो रहा है, राइट. y 0, तो y 0 हो रहा है क्योंकि x एक्सिस है, तो ये हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, करेक्ट. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है -1, 0 और ये वाला पॉइंट है 1, 0. नाउ फाइनली वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ मॉडुलस ऑफ मॉड x -1, ठीक. तो उसके लिए क्या बताया था, वेयर इज़ द मिरर, मिरर इज़ ऑन
एक्स एक्सिस, ओके। तो बिलो एक्स एक्सिस वाले का इमेज लेना होता है और इमेज इन्वर्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर प्लेन मिरर है, हियर इट इज़ प्लेन मिरर। मिरर में इमेज कैसे देखते हैं, जो ये वाला है इसका पोर्शन तो ऐसा हो जाएगा, और ये जो राइट साइड में बिलो है इसकी इमेज ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये जो नीचे पॉइंट था ये 0, -1 है, तो ऐसा लग रहा है कि इसी की इमेज आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 0, 1 हो जाएगा, राइट। फिर आप नीचे वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू गेट इज दिस काइंड ऑफ डायग्राम, ये मिल जाता है। दिस इज द फाइनल ग्राफ, और पॉइंट्स तो आपको दिख ही रहे हैं, राइट। Is it clear? Any doubt? Just wait a second. Or you can try a graph in the meanwhile. ये ग्राफ और बना के देख लो. Draw a graph of y equals mod of this. ग्राफ बहुत काम की चीज़ है, पूरे चैप्टर में पहले ही बता चुका. Draw this.
Yes, anyone? Is it done? Anyone has drawn this? देखिए, एक तो इसमें इसका ग्राफ आपको आता ही, राइट? ये मैंने आपको 11th में सिखाया था, इससे कंपेरेबल होता है। ग्राफ इज पैराबोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख के माउथ ऑफ वर्ड्स, देन वी फाइंड रूट्स एंड एवरीथिंग। इस तरह का शेप आता है उसको, करेक्ट? रूट्स निकालने के लिए y को 0 कर देते हो एंड ऑल। एक बार वो हो गया फिर तो ग्राफ इसका तो बन ही जाएगा। रूट्स निकाल लिए, फिर वो सब, है ना? नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट्स मॉड। तो अब क्या बचता है? कुछ नहीं, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इस वाले पोर्शन को, ठीक है? अच्छा, अगर कोई ये बोले कि सर मान लीजिए वाई एक्सेस के बिलो नहीं आता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी एक एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे ये वाला है, तो व्हाट इज़ द फाइनल ग्राफ? दिस इज द फाइनल ग्राफ, करेक्ट? 1 2, क्योंकि एक्स एक्सेस के बिलो वाला हटाना होगा, राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है, जस्ट ट्राई दिस ऑल्सो, देन वी विल टेक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रॉ दिस।
देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो प्रीवियस की तरह आप वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो इससे कंपेरेबल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट, माउथ अपवर्ड। और इसमें जो एक और बात है ना, वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाली है, डिस्क्रिमिनेंट। So it's not audible. नॉट ऑडिबल, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट अबाउट अदर्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यू कैन हियर मी, राइट? Yes, sir. ओके, सो देखो प्रीवियस वालों की तरह जैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ विल बी पैराबोला, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए इज पॉजिटिव, तो माउथ अपवर्ड होगा, माउथ अपवर्ड्स। और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, डी इज नेगेटिव, राइट। सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, करेक्ट। एक मैंने आपको इसमें वर्टेक्स भी बताया था, और मैंने बताया था कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो वाई एक्सिस को 0,1 पे कट करेगा। तो बेसिकली एक ना इस तरह का ग्राफ बन जाता है ऐसा करके। अब कोई बोलेगा इधर की तरफ क्यों आ रहा है टर्निंग पॉइंट, तो उसके लिए वर्टेक्स का फॉर्मूला भी था, अगर याद हो तो, -b/2 है, -g/4 है। ये ए बी सी डी क्या है सब, ए और बी तो यहाँ से देखो आप देख सकते हो, एंड डी इज़ फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो -b/2 से तो आता है ये, अच्छा ग्राफ जो है इधर से कट नहीं लेगा, दूसरी तरफ से लेगा। दिस इज़ द वर्टेक्स, सो दैट मीन्स इसका जो वर्टेक्स है ना, जो टर्निंग पॉइंट है, दैट विल बी ऑन द अदर साइड। हाउएवर, चलो एक बार बना देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ बनाना जरूरी है। ये बना दिया, राइट। दिस इज 0,1 and it is not cutting x-axis because no real roots, and this is the vertex -1/2, 3/4, ठीक है। अब इस केस में अगर कोई बोले कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ भी सेम होगा, सेम। व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज जब हम मॉडुलस लेते हैं ना, तो हमें एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन का इमेज लेना होता है एक्स एक्सिस में, बट देर इज़ नो पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। इसका मतलब that means this graph will only work, right? No other graph is required. I hope this is clear. So if it is above the x-axis, then we won't consider anything. Yeah, obviously, because see, we have to take the image of the graph. We have to take the image of the graph which is below x-axis. If in the graph itself, if in the standard function itself, the graph is not below x-axis, right? Graph is not below x-axis, then there is no requirement at all. That means that will be the same graph. Fine. Yes, sir. Okay. Because ultimately we take only that portion of the graph which is above x-axis. That is why. Okay, so this was fifth transformation. Now let's move to the next one. Okay, so if we know the graph of y equals fx, then to draw the graph of
This will be, I think, sixth transformation, right? Y equals f of minus x. We take the image of y equals fx in y-axis. Only the image is the graph of y equals f of minus x. Only this. Okay. So if we have the graph of y equals fx, now what is the next transformation? F of minus x. That means in place of x you will see minus x, like that. So what you have to do, whatever graph is there, whose graph of y equals fx, you will take its image in y-axis. Now whenever I say in y-axis, in x-axis, that means there is a plane mirror there, right? And you have to take the image. And what is important? Only the image's graph, not the complete, only the image. Let us take example. Draw graph of y equals e to the power minus x. Okay, and see, you know the graph of this, you are supposed to draw graph of this. That means replace x by minus x and you will get this graph. So we know graph of y equals e to the power x, right? You can say that this is fx. If you want, you can write it as fx also. Okay, suppose this is the graph, y equals fx equals e to the power x, and you know how to draw its graph. This is the graph, correct? And from this we have to draw the graph of y equals minus x, e to the power minus x. And this graph, the one that I have drawn, I have already taught you how to draw this graph, correct? तो अब करना क्या है फिर इसमें? आपको इसकी इसमें ना इमेज लेनी है, और मिरर कहाँ पे रखा हुआ है? वाई एक्सिस पे. तो देखो इमेज लोगे तो मैं रेड वाले से बना देता हूँ इमेज. तो जो राइट साइड में पोर्शन है उसकी इमेज तो इधर आ जाएगी, और जो इधर है उसकी इमेज इधर आ जाएगी. तो ये जो आप राइट साइड, जो आप रेड वाले कर्व में आप देख रहे हो, रेड वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, सिर्फ यही आपका आंसर होगा. यानी कोई बोले कि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या है, तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये, दिस इज द ग्राफ. Okay, because it is clearly mentioned that only the image is the graph of y equals f of minus x. कुछ ऐसा नहीं करना है कि किसी को डिलीट करना है, कुछ करना है. जो भी ग्राफ होगा उसकी y एक्सिस में इमेज देखनी है, और जो इमेज वाला पोर्शन है वही अपना f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हो जाता है. इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो. सी there are like around 9 to 10 दिस ट्रांसफॉर्मेशंस. एट द एंड क्या है टास्क? हमको सारी ट्रांसफॉर्मेशन याद रखनी है और क्वेश्चंस को देख के पहचानना है कि कौन सी वाली ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. एनी डाउट इन दिस? ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं. अभी आपने ये जैसे इमेज निकाली वाई एक्सिस में, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें एक्स एक्सिस में इमेज लेते हैं. जैसे जो सिक्स्थ वाला था, सेवेंथ. if we know graph of टोटल 12 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो हमें आनी चाहिए सवाल करने के लिए. सो इफ़ वी नो
graph of y equals fx, then to draw graph of y equals minus fx, we take the image of y equals fx. अब देखो माइनस कहाँ पर है, माइनस आगे है, हर एक बार कुछ डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से सेम है, वरना वही ट्रांसफॉर्मेशन काम आ जाती ना। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्या आपको पता है और किसका ग्राफ आपको बनाना है। ओके, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर द ट्रांसफॉर्मेशंस। सो वी टेक द इमेज ऑफ y इक्वल्स fx in x-axis. Only the image is the graph. Only the image is the graph of y equals minus fx. कुछ पहले जैसा ही है, मतलब जब f ऑफ माइनस एक्स की बात हम कर रहे थे, एक्सेस में इमेज देखते हैं और सिर्फ इमेज को रख लेते हैं। अब हम माइनस एफ एक्स की बात कर रहे हैं और इस बार भी हम इमेज ही रखेंगे, पर इस बार इमेज किस में देखी जाएगी, इमेज देखी जाएगी एक्स एक्सेस में, करेक्ट। तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ, मान लीजिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, इसका ग्राफ बनाने को आपसे कहा जाता है, ठीक है, y इक्वल्स माइनस ऑफ e टू द पावर x। देखो सबके ग्राफ नहीं याद रख सकते, राइट, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशंस हमको ध्यान है तो हम स्टैंडर्ड फंक्शंस की हेल्प से और ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके हम उनके जैसे दिखने वाले फंक्शंस के ग्राफ्स बना सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट द चैलेंज इज़ टू रिमेंबर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड दैट विल कम ओनली विद प्रैक्टिस, राइट। ऐसे लास्ट मोमेंट पे अगर कोई सोचे सारी ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल मिक्सड अप, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। तो अब जैसे इसका ग्राफ बनाना है, राइट, तो वी नो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स e टू द पावर x, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें किसका ग्राफ बनाना है, हमें e टू माइनस ऑफ e टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, करेक्ट। तो माइनस ऑफ e टू द पावर x के ग्राफ में क्या करना होता है, बस x एक्सिस में इमेज ले लेनी होती है। तो ये हमने x एक्सिस में इमेज ले ली, ठीक है। आप समझ रहे होगे x एक्सिस y एक्सिस में इमेज कैसे वो इन्वर्ट हो जाती है प्लेन मिरर में, इमेज तो सभी देखना जानते हैं, फिजिक्स में भी आप लोग देखते हैं, राइट। सो वॉट एवर इज द इमेज, दैट इज द इन्वर्टेड इमेज, राइट। Considering a mirror at this x-axis, you can find the images, correct। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर वही है, सिर्फ रेड वाला, ओके, नॉट द होल थिंग, लिखा हुआ है क्लियरली ओनली द इमेज। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ, ऐसे लगा दो। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस तो इजी हैं, दे यू कैन रिमेंबर, और वैसे भी एक दो बार यूज़ करोगे तो फिर याद रह जाएंगे। एनी डाउट टिल नाउ? Okay, then I will go for the next one, that is 8th. Nigel, just confirm, am I audible to you? Yes, sir. Okay, let's go to the 8th one. आज हम लोग ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, कल जो आपका टेस्ट है उसमें ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, ओके। एंड द नेक्स्ट वीक, दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, 3 टॉपिक्स आर रिमेनिंग। आई विल टेक 3 टर्न्स, एक में मैं आपको कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ाऊँगा, एक में पीरियडिक फंक्शन, and lastly we will study about functional equations, and this chapter will end, okay। So we have taken one topic on each turn, right? I have devoted so much time, so now what you have to do, you have to do DPPs. If you have time, you can revise your
through your DPPs, do them again, okay, and go through your lectures, whatever. This is a very important chapter. इसको अच्छे से कर लिया तो बाकी क्वेश्चन चैप्टर्स का बेस अच्छा बन जाएगा, राइट? सो दिस इज क्रूशियल. Okay, let's go for the next transformation. So if we know the graph of y equals fx, then to draw graph of y equals, अब देखो मॉड कहाँ पे आ रहा है, कोई भी पिछले से सेम नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस है. मैंने पहले आपको सिखाया था उसमें मॉड पूरे फंक्शन पे था, एफ एक्स पे. अब मॉड सिर्फ एक्स के साथ है और इसमें 2-3 स्टेप्स हैं, तो ये थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा सा लेंथी है, बट वी कैन डू इट. स्टेप 1, just okay. Step 1, leave graph of y equals fx at the right of y axis. Leave means delete. Now you will say, sir, what is the meaning of right of y axis? Always present. So when you draw the graph of y equals fx, okay, this is y equals fx, and when you draw the graph, you see that there is some graph present to the right of y axis. Sorry, just a minute. Just a minute. Just wait. Yeah, this leave graph of y equals fx at the left, not right. Okay, delete this portion if it is present on the left side of y axis. Then step 2, take image of right portion, image of portion on right of y axis. And where is the mirror? Mirror is at y axis only. Okay. Total graph now present is graph of y equals this, and note that the graph will be symmetric about y axis. Graph will be symmetric about y axis. Let me explain you this concept with the help of example. अभी 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा. देखिए, सपोज मैं आपसे बोलूँ ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स दिस, इसका ग्राफ मैं आपसे बोलता हूँ बनाने के लिए. ओके, ग्राफ ऑफ mod of x square minus 3 mod x plus 2. सपोज वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. ओके, तो अब इसमें तो आपको एफ एक्स पहचानना है, एफ mod x पहचानना है, करेक्ट? सो हाउ वी स्टार्ट, वी नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स दिस. अभी बनाया भी था कुछ देर पहले.
ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इट विल बी, ग्राफ विल बी लाइक दिस, करेक्ट। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, वैसे आपको पता है पैराबोला है, सो इट विल बी एक्सटेंडेड, ये इधर भी एक्सटेंड हो जाता है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो जाता है, राइट। अब हमको क्या करना है, we have to leave graph of y equals fx which is left of y axis, so whatever graph is there to the left we delete it, okay। that means after step 1 ग्राफ कुछ ऐसा रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा, राइट। यू कैन नॉट टेक इट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इज स्टेप 1। और फिर स्टेप 2 क्या है कि जो भी पोर्शन राइट में था उसकी इमेज ले लेंगे y एक्सिस में, और कंप्लीट ग्राफ हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, स्टेप 2 यूज़ करनी है, स्टेप 2, एंड स्टेप 2 के बाद जो फाइनल ग्राफ है, देखिए ये तो इधर वाला पोर्शन है और इसका वाई एक्सिस में इमेज लेना है, राइट। तो ये इधर आ जाएगा एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ग्राफ। किसका ग्राफ, क्योंकि स्टेप 2 तक ही तो है, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 2 यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन था एफ एक्स, उसमें एक्स की जगह आप मॉड एक्स रख दीजिए, मतलब ये, तो ये आपका ये ग्राफ बन जाएगा, बिकॉज यू हैव टू टेक द टोटल ग्राफ। और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट थिंग, द ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे फंक्शंस को इवन भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो, दिस इज़ इवन फंक्शन, ओके। तो सिंपल है, अगर लेफ्ट साइड में कुछ पोर्शन प्रेजेंट है वाई एक्सिस से, उसको डिलीट करो, जो राइट में बचा है उसकी इमेज ले लो वाई एक्सिस में, और जो टोटल ग्राफ होगा, जो टोटल ग्राफ होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एफ ऑफ मॉड एक्स। एनी डाउट इन दिस, इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? No, sir. ओके, तो फिर लास्ट ट्रांसफर देखो, ये जो शुरू की 8 बताई है ना, आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन द प्रायोरिटी ऑर्डर। ये जो फर्स्ट 8 हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तो यही काम में आएंगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से हो जाते हैं। बट सिंस आई एम टीचिंग यू समथिंग, तो बताना तो पूरा ही है। तो अब जो आखिरी की 4 हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दैट मच, उतना ज़्यादा मैंने उनको यूज़ होते हुए क्वेश्चंस में देखा नहीं है, बट एनीवेज लेट अस लर्न देम आल्सो। सो अब क्या है, ये चारों एक साथ आ जाएंगे। इफ़ वी नो द ग्राफ ऑफ y equals fx, then to draw graph of अब इसमें जो आता है सबसे पहले ये है, देखिए दिस इज योर 9th, y equals f of ax where a is greater than 1, shrink the graph of y equals fx a times along x-axis। अब इसमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, बाकी एक एग्जांपल मैं लूँगा, शायद उससे आपको क्लियर हो जाए। एंड 10th वन इज इसी का ग्राफ दोबारा, लेकिन इस बार जो a है उसके साथ वो 1 से कम हो, 1 से कम हो मतलब 0 to 1 के बीच में हो, पॉजिटिव हो 0 से 1 के बीच में हो, तब हम श्रिंक की जगह स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच द ग्राफ of y equals fx a times along x axis। फिर ऐसे 2 आएंगे, उसमें y एक्सिस के अलोंग करना होता है और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा, इसका क्या मतलब है श्रिंक और स्ट्रेच का।
देखिए सपोज आपको ये ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स sin 2x एंड y इज इक्वल टू sin x बाई 2। देखिए मैंने आपको अभी तक ना हमेशा y इक्वल sin x का ग्राफ बनवाया, और वो आप बना भी देते हो। अगर मैं sin 2x का भी कहूँगा वो भी बना दोगे, sin x बाई 2 का भी बना दोगे। लेकिन अगर मैं तीनों का ग्राफ एक साथ बनाने को बोलूँ, एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन देयर ग्राफ्स। ओके, तो इसको आप समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये इस थियोरी से कैसे रिलेटेड है? थियोरी को देख के आपको ये समझ में आएगा कि x की जगह ना कुछ ax रख देते हैं, जैसे y इक्वल साइन एक्स में वी नो ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन एक्स, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है ये x है तो साइन में x आ गया। अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। इधर मान लो अगर मैं x बाई 2 रख दूँ तो इधर x बाई 2 हो जाएगा, राइट। यानी x की जगह मैं कुछ ax करके रख रहा हूँ, और ax में क्या ऑप्शन हो मेरे पास? ax के लिए क्या बात है कि या तो 1 से बड़ा हो या 0 से 1 के बीच में हो, करेक्ट। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे और उससे कंपेयर करते हुए साइन 2x और साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाओगे। साइन 2x वाला तो 9th जैसा है क्योंकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 10th वाला, सॉरी दूसरा वाला जो साइन एक्स बाई 2 है वो 10th जैसा है क्योंकि उसमें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 वो आपका 10 से कंपेरेबल है। अब उसमें करना श्रिंक और स्ट्रेच, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। पर ये इतना ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप तीनों ग्राफ्स बनाओगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ श्रिंक एंड स्ट्रेच। तो अब ध्यान से सुनिएगा जो बनाने जा रहे हैं। लेट अस ड्रॉ इट लाइक दिस, यहाँ से क्लैरिटी आएगी आप। देखिए मैं क्या करता हूँ उसमें ना कुछ एंगल्स मार्क करता हूँ थोड़े से, उसी में आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब तुम कहोगे ये क्या बनाया हुआ है? ये मैं 3 ग्राफ एक पे ही बना रहा हूँ, तो मैंने वाई एक्सेस तो एक बार बना लिया है ना, और मैं कह रहा हूँ ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। मतलब 3 ग्राफ्स को कंबाइन कर दिया। तो एवरी टाइम मैं यहाँ पर कुछ ना ऐसे करके ही मार्क करूँगा, ऐसे। जब तीनों ग्राफ एक के नीचे बने होंगे ना एक, तब तो मैं समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, श्रिंक और स्ट्रेच का क्या मतलब है। एक बार 0 से 2 पाई तक के लिए देखते हैं पहले, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो बनाऊंगा साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि वो मुझे पता है। साइन एक्स का ग्राफ हाइट 1 से 1 होती है, तो हाइट तो आप थोड़ा सा बना लेना यहाँ पर। देखो ये ग्राफ ऐसे चला, फिर ये यूँ करके ऐसे आ गया, ठीक है। ये ग्राफ मैंने किसका बना लिया? हाइट भी यहाँ पे 1 रख दिया है ना, ये -1 है हाइट, ऐसे करके ये y इक्वल साइन एक्स ऐसे। अब कोई बोले कि ये मुझे बनाना है इसका साइन 2x का ग्राफ, राइट, साइन 2x का ग्राफ। तो मैं अभी पहले ग्राफ बनाता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। ये, और मैं एक लास्ट वाला भी बना देता हूँ। ये है अपना कौन सा जो मैंने इधर बनाया है, ये है y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। और अब मैं बना देता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 को। ये देखिए, ये तो कट ही नहीं कर पाया नीचे। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप रेड वाले कर्व को इमेजिन करेंगे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं, यहाँ से समझाता हूँ। देखो ये देखिए, अगर आप देखें कि साइन एक्स और साइन 2x के ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो साइन 2x और साइन एक्स के ग्राफ में ये डिफरेंस है। देखो हाइट तो बदलती नहीं है, हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो साइन की भी, साइन 2x की भी 1 होगी, ठीक है, साइन एक्स बाई 2 की भी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी, लेकिन अलग अलग एंगल पे होगी। या फिर आप ऐसे समझ लो कि
मैंने ये लिखा था कि जब a 1 से बड़ा होगा ना तो एफ एक्स का ग्राफ श्रिंक होगा a टाइम्स अलोंग एक्स एक्सेस एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ये जो ग्राफ है ना ब्लैक वाला, ब्लैक से रेड होने में ये ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो गया, आप देख सकते हैं राइट। पहले पाई पे जाके 0 हो रहा था, अब तो पाई बाई 2 पे ही 0 हो गया। तो पाई और पाई बाई 2 में क्या रिलेशन है? पाई जो है पाई बाई 2 का 2 टाइम्स है, पाई, यानी जो चीज़ पाई पे आके कट हो रही थी वो अब पाई बाई 2 पे ही कट हो रही है, मतलब श्रिंक हो गया ग्राफ। एंड दीज वैल्यूज आर नॉट पुटिंग रैंडमली। आप चाहो तो y इज इक्वल टू साइन 2x में यहाँ पर आप पाई बाई 2 रख के देखो, तो जब आप पाई बाई 2 रखोगे ना तो वो उसको 2 इंटू पाई बाई 2 पड़ेगा राइट, और उससे उसकी वैल्यू साइन पाई, और सभी जानते हैं साइन एन पाई 0 होता है। तो दैट इज़ वाई, तो ग्राफ मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ब्लैक के कंपैरिजन में रेड वाला श्रिंक हो गया 2 टाइम्स, पाई की जगह पाई बाई 2 पे कट करने लग गया। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, इसमें तो ये स्ट्रेच हो गया, देखो लिखा भी हुआ है स्ट्रेच। ये स्ट्रेच क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो ग्राफ है ना आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का, क्या वो पाई पे 0 होगा? क्या वो पाई बाई 2 पे 0 होगा? नहीं होगा। तुम x की ये वैल्यूज़ रख के देख लो यहाँ पर, ये तो 0 नहीं हो रहा। पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 4 बन जाएगा, पाई रखोगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा। तो फिर आफ्टर ऑल 0 कब होगा? पाई पे हो रहा है, सॉरी 2 पाई पे। 2 पाई रखोगे, 2 पाई अपॉन 2 पाई साइन पाई 0। तो आप देखिए कि इसके कंपैरिजन में, ब्लैक वाले के कंपैरिजन में ब्लू वाला क्या हुआ है? ब्लू वाला स्ट्रेच कितने टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स। पहले जो पाई पे 0 हो रहा था, अब वो किस पे 0 हो रहा है? अब वो 2 पाई पे 0 हो रहा है। ओके, लाइक दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेच एंड श्रिंक। हालांकि मैंने आपसे बोला ये काम तो आएगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा काम नहीं आएगा, बट उतना नहीं आता है। बट ट्रांसफॉर्मेशन सारी की सारी समझनी है, याद रखनी है, उनको स्टडी करना, छोड़ना कुछ नहीं है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Shall we move to the next, that is last transformation? Yes, got it. Yes. All right. Okay, so last transformation now. इसमें जो कुछ भी है ना, इसमें जो कुछ भी है वो जो अभी हमने x एक्सिस के अलोंग किया है दैट वी विल डू अलोंग y एक्सिस, ठीक है? y एक्सिस के अलोंग करेंगे, बस खत्म हो जाएगा। So can you scroll down? Yeah. Just wait, let me make a call. Actually, it's coming from. Just wait a minute, okay? Is it done? Yes, sir. Yes. Okay. Let's take the last transformation. Again, if we know graph of y equals fx, then to draw graph of. So I had a question, sir. Yeah, what is your question? So in the about transfer just given, so the range will be the same. Range will remain same because see these heights, no, these heights are between -1 to 1, but they are acquired at different values of x. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि sin 2x की वैल्यू 1 कब होगी, सो आई विल से x at x इक्वल टू 45 डिग्री, ओके? अगर मैं Yes. बोलूँ साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, तो 90 डिग्री पे होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू 1 कब होगी, तो आंसर विल बी पाई। तो देखो पहले में 45, साइन एक्स में 90 और लास्ट वाले में 180 डिग्री रखने पर, यानी अलग अलग एंगल्स पे सेम हाइट आ रही है। सो हाइट विल रिमेन सेम, ओके? जस्ट द इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इट इज़ कंप्रेस्ड और इट इज़ स्ट्रेच्ड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, लेकिन हाइट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। अंडरस्टैंडिंग? Yes, I understood. ओके अभी जो तुम ये वाला देखोगे ना लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब जब ये y के अक्रॉस होगा तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। सो फॉर 11th एंड 12th वी आर डूइंग इट।
देखो इसमें क्या है कि ए एफ एक्स है अगर ए ग्रेटर देन 1, ओके, और एक है आपका देयर इज़ वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन हो, चलो कोई नहीं, आई विल वाइंड इट अप क्विकली, 10 minutes more. So y equals fx where a is greater than 1 and y equals a f x where a is less than, अब ये तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी बिकॉज ये वैसी है जैसे x एक्सेस के अलोंग थी। इसमें क्या करना होता है, स्ट्रेच ग्राफ ऑफ y equals एफ एक्स along y axis by a units, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, इसमें श्रिंक करना होता है, श्रिंक एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, श्रिंक द ग्राफ ऑफ दिस अलोंग y एक्सिस बाय a यूनिट्स। स्ट्रेच और श्रिंक याद रखो और इसकी वैल्यूज। लेट अस क्विकली टेक द एग्जांपल्स। तो अब ये a बाहर है, देख रहे हो, एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको इससे कंपेरेबल कैसा होगा क्वेश्चन, देखो मैंने कुछ 2-3 ही फंक्शन लिए हैं बार बार यूज़ में ना, जैसे मॉडलस एक्स के एग्जांपल लिए, ई की पावर का लिया, साइन एक्स का लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 के लिए यूज़ होता है एनी फंक्शन, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, राइट। ये मैं सोचने लग जाना कि इन 2-3 के लिए यूज़ होता है बस। अब ये है, अब तुम्हें इससे लिखने पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने लिखा था साइन 2x और साइन x/2, पहले जो नंबर था वो x के साथ मल्टीप्लाइड था, अब वो पूरे फंक्शन के साथ बाहर में मल्टीप्लाइड है। पता कैसे चलेगा, वही जब बनाओगे ग्राफ, मैं एक काम करता हूँ ऐसे ग्राफ बनाता हूँ। इसमें किसी ने पूछा था अभी जस्ट कि हाइट का क्या होगा सर, इस बार ना हाइट में फ़र्क रहेगा। देखो पहले जल्दी से बना देते हैं साइन एक्स का ग्राफ, ये इतना ही बना देते हैं, ज़्यादा तो क्या बनाना है। तो ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये 5 पाई हो गया, ठीक है। ये हाइट सभी जानते हैं 1 होती है, ये हाइट -1 होती है, राइट। और ये ग्राफ है ब्लैक से बना रहा हूँ, तो ओरिजिनल का बनाऊँगा साइन एक्स का, ठीक है। अब मैं बनाऊँगा 2 साइन एक्स का ग्राफ। देखो सुनने में ही समझ में आ जाता है कि साइन एक्स का डबल है 2 साइन एक्स का डबल है 2 साइन एक्स, इसका मतलब जब भी साइन एक्स की कुछ हाइट होगी ना, उसकी डबल हाइट 2 साइन एक्स ही होगी। सो बिकॉज ऑफ ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ कि एक जगह ना ये सेम हो रहा है, वो तो होंगे ही। अगर मान लो साइन एक्स 0 है तो 2 इंटू साइन एक्स भी तो 0 ही होगा, 0 का डबल तो 0 ही होता है, 0 का हाफ भी 0 ही होता है। लेकिन जब साइन एक्स 1 होगा उस मोमेंट पे 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी, और जब उसकी हाइट -1 होगी तब वो वहाँ पर -2 होगा। ये हमें कहाँ से समझ में आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से। पढ़िए इसको, क्या लग रहा है, स्ट्रेच। इमेजिन करिए कि ये जो ब्लैक वाला कर्व था 0 से पाई पे, इसको आपने पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा है, स्ट्रेच किया है, राइट। तो इसके जो एंड्स हैं वो तो 0 और पाई पे हैं। Imagine as a rubber or something, some elastic thing, right, which is stuck at 0 and pi. Now you are stretching it, okay. So for 2 sin x it will go towards till height 2, and same thing is here. जो पाई और 2 पाई पे स्टक है उसको आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो, सो दैट इट गेट्स टू -2। ये ट्रांसफॉर्मेशन से भी समझ में आ जाना चाहिए, और वैसे हाइट देखकर भी कि साइन एक्स का डबल 2 साइन एक्स। अगर ये समझ में आ जाता है तो हाफ साइन एक्स और भी आसान हो जाएगा। हाफ साइन एक्स में साइन एक्स के कंपैरिजन में हाइट हो जाएगी हाफ, जैसे ये ठीक है। कोई बोले कि भाई इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट हाफ हो पाएगी, और मिनिमम हाइट कितनी है, मिनिमम हाइट -हाफ हो पाएगी। लेकिन इसके साथ भी वही है कि ये भी 0 वहीं पे होगा जहाँ पर ब्लैक और रेड वाले हो रहे हैं। उसका एक रीज़न सिंपल सा है कि मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास साइन एक्स है, मेरे पास 2 साइन एक्स है, और मेरे पास हाफ साइन एक्स है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x = 0 पर इनकी हाइट्स क्या हैं, तो तीनों की हाइट इस पर भाई 0 ही तो होगी। तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हाइट सेम है, बाकी जब भी हाइट होती है तो 2 साइन एक्स में डबल होगी और हाफ साइन हाफ हो जाएगी। हाफ मतलब श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक अलोंग y एक्सिस बाय a यूनिट्स। तो देखो जब इसकी हाइट 1 थी तब इसकी हाइट 2 हो गई,
क्योंकि स्ट्रेच करना है ग्राफ को बाई 2 यूनिट्स, और जब ब्लैक वाले की हाइट 1 थी तब ब्लू वाले की हाइट हो गई हाफ, बिकॉज यू हैव टू श्रिंक द ग्राफ बाय 2 यूनिट्स। श्रिंक करने का मतलब 2 यूनिट से श्रिंक करने का मतलब है आधा कर देना, हाफ कर देना, हाइट में आधा कर देना। ओके, श्रिंक बाय ए यूनिट्स मीन्स श्रिंक द ग्राफ और रिड्यूस द हाइट बाय 2 यूनिट्स। 2 यूनिट से हाइट कम कर देना मतलब आधी हाइट कर देना, हाफ कर देना। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, टेल मी। Can you explain the shrinking part again? देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम्हारे पास हाइट कितनी है, जैसे साइन ब्लैक वाले कर्व को देखो, ब्लैक वाले कर्व पे यहाँ पर दिया हाइट 1 है, उस मोमेंट पे जब साइन एक्स पे हाइट 1 होगी तब हाफ साइन एक्स की हाइट कितनी आएगी, हाफ ही तो आएगी। ओके, सो 1 इज डबल ऑफ हाफ, ये कह रहा हूँ मैं। तो कोई बोले कि हाइट कितने टाइम्स जो है श्रिंक हो गई है, तो हाफ का तो डबल है ना 1, तो 2 टाइम्स श्रिंक होने का मतलब दैट इज लाइक रिड्यूस टू हाफ। 3 टाइम्स श्रिंक होने का मतलब रिड्यूस टू 1/3, ये कहना चाह रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir, got it. क्लियर? Yes, sir. क्योंकि कोई ये बोले कि सर 2 टाइम्स श्रिंक की है, 2 टाइम्स श्रिंक मतलब जो प्रीवियस हाइट थी उसका 2 टाइम्स श्रिंक आप कम कर रहे हो, तो आप 2 टाइम थोड़े ना करते हो, वो आप उसको बेसिकली क्या बोलोगे, दैट यू हैव रिड्यूस्ड इट बाय हाफ। एंड लिसन, अगर आपको क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो भी नंबर लोगे ना, जो भी नंबर लोगे वो नंबर खुद कहाँ से कहाँ तक होगा, वो नंबर फ्रैक्शन में होगा। तो फ्रैक्शन में होगा तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया हाफ साइन एक्स, अब मैं यहाँ पर ए को हाफ पढ़ता हूँ। अब ए को हाफ पढ़ने के बाद सेंटेंस को पढ़ो, श्रिंक ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ एक्स अलोंग वाई एक्सेस बाई हाफ यूनिट्स। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? यू आर कंपेयरिंग y इक्वल्स हाफ साइन एक्स। ओके, हाफ साइन एक्स को आप इससे कंपेयर कर रहे हो। अब ए की जगह हाफ पढ़ोगे तो सेंटेंस को क्या पढ़ोगे, श्रिंक ग्राफ ऑफ वाई एक्सेस बाई हाफ यूनिट्स, मतलब आधा कर दो हाइट को। इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। Okay, then the last transformation. It won't take much time, just pay attention. If we know graph of y equals fx, then to draw graph of, अब mod y is equal to fx mod y is equal to fx 13 last transformation। ठीक है, स्टेप्स देख लो इसमें। स्टेप 1, रिमूव पोर्शन ऑफ y equals fx below x axis, below x axis। यानी अगर x एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ प्रेजेंट है तो उसको आप डिलीट कर देंगे। पहली स्टेप, 3 स्टेप में हो जाता है ये। स्टेप 2, टेक इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, टेक इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। यस Sir, could you please repeat because the ink is too light? Okay, wait a minute. Actually, this happens when when you're at the end of the class, 1.5 after 1.5 hour, this thing gets light. Step 1 में बोल रहा हूँ, if you want you can write. Step 1 is remove portion of y equals fx below x axis. Okay. Remove portion of y equals fx below x axis. This is step 1. Step 2 is, देखो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट कलर में भी ब्लैक कैन हेल्प। स्टेप 2, टेक इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। हाँ, यहाँ से आ जाएगा। टेक इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन with respect to x axis, with respect to x axis. That's fine now. Thank you. Yeah, that is because of the color as well, right? Step 3, the complete graph. Just 2 more minutes, this is over. The complete graph, that is graph above y-axis, graph
above y-axis and its image. Is the graph of mod y equals fx. ये है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे जब भी एग्जाम्पल पढ़ोगे ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जाम्पल में समझना। जैसे देखो अगर कहा जाए कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ mod y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मान लो ये कहा जाता है, ठीक है। तो यही है 13th। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए y इक्वल्स एफ एक्स का ग्राफ। हम लिखेंगे वी नो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स दिस। ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ आज, अभी तक तो ग्राफ ये वाला भी याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये देखिए दिस इज़ योर ओरिजिनल फंक्शन है ना, 1 और 2 पे कट करता है, पैराबोला बनता है, ये सब। कुछ तो ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक वाले जो कि याद ही हो जाते हैं। ये बना दिया। अब आ जाओ स्टेप 1 पे। स्टेप 1 जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स एक्सिस का बिलो पोर्शन हटाना होगा। एक्स एक्सिस का बिलो पोर्शन हटा देते हैं। एक्स एक्सिस का बिलो पोर्शन हटाने के बाद ग्राफ ये रह जाएगा, करेक्ट, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के बिलो वाला था वो मैंने हटा दिया। अब सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। सेकंड स्टेप में बोल रहे हैं कि जो अब रिमेनिंग पोर्शन बचा स्टेप 1 के बाद उसकी एक्स एक्सिस में ही इमेज लेनी है। ओके, वॉट एवर पोर्शन इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द पोर्शन यू हैव टू टेक इट्स इमेज एंड इन एक्स एक्सिस एज वेल। तो ठीक है, अब एक्स एक्सिस में इमेज लेने का मतलब तो आप जानती हो कि इन्वर्ट कर देता है वो उसको, ठीक है। तो ये लिया आपने। अब इसका इमेज लेना है तो देखो मैं ये बना देता हूँ, अभी मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ शो करने के लिए कि इमेज ले रहा हूँ। इन्वर्ट हो जाती है, राइट, ये हो गया ये। अब क्या लिख रहा है, मेरे ख्याल से यही तो है, द कंप्लीट ग्राफ ये, मतलब इमेज लेने के बाद अब कुछ हटाना नहीं है। द कंप्लीट ग्राफ दैट इज़ ग्राफ अवर वाई एक्सिस एंड इट्स इमेज, मतलब कंप्लीट, ठीक है। यही जो है इसमें जो एक टर्म लिख रहा है, ये जो एक टर्म लिखा है ना यहाँ पे प्लीज़ चेंज कर लेना। ये अबव वाई एक्सिस नहीं है, अबव एक्स एक्सिस है। ओके, अबव एक्स एक्सिस, दिस इज मिस्टेक। स्टेप 3 प्लीज़ चेंज हियर एक्स एक्सिस, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ दैट इज ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एंड इट्स इमेज, ये ग्राफ होता है। ओके, तो ये जो मैंने फाइनली बनाया ये किसका ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। सी एवरीथिंग इज हियर, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। पहले आपको गिवन y इक्वल्स एफ एक्स बनाना है, फिर एक्स एक्सिस के बिलो से पोर्शन हटा देना है, उसके बाद जो पोर्शन बचा उसकी एक्स एक्सिस में ही इमेज लेनी है, और ये जो कंप्लीट ग्राफ है जो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है दैट इज़ योर ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल्स दिस। गो थ्रू ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को एक बार वापस पढ़ो, उसके नीचे एग्जाम्पल। व्हेन यू विल डू रीडिंग फॉर 1 और 2 टाइम्स नो देन एवरीथिंग विल फिट इन योर माइंड, और फिर तुम एग्जाम में पहचान पाओगे टेस्ट में या डीपीपी टाइम सॉल्व करते टाइम कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है या एक क्वेश्चन में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। ओके, सो वी विल सी इन अपकमिंग क्लास, वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन देम एज वेल। आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस थिंग इज नॉट कमिंग इन योर टुमारोज टेस्ट। ओके, सो वेन एवर यू गेट टाइम जस्ट रिवाइज दिस। ओके, नाउ सी यू ऑन मंडे। थैंक यू, बाय एवरीवन। Sir, Yeah, please. sir, tomorrow's test will be like the NCRT based questions, no? सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, डीपीपी अच्छे से की हुई हैं, सवाल हो जाएंगे। आई कैन ओनली से दैट। Okay, You sir. need not to go anywhere. Okay? Just concentrate on your lecture notes and your DPPs, and you will be able to solve every question. Fine. Okay, sir. All right. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Bye, everyone.
Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, bye.